नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, और आपको सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उसके अलावा गुड इवनिंग, उसके अलावा नी हाउ। आप कुछ बोलने वाले थे? हमारी आंखों जाम ओवर। जबरदस्त। That is for all the Swahili speaking people of Africa, Zanzibar and the whole of West Africa. Your viewers from Africa. That's right, absolutely. I remember in the old days we used to get lots and lots of SMSs from places like Eritrea and Ethiopia. It was fantastic, and even from Swaziland. Yes, yes. Wherever there are Indians, they used to watch us, and of course Middle East. That's a lovely place, and so on and so forth. So elections have been declared. The Electoral Code of Conduct is now in place. Elections are going to be held in 7 phases. 7, Pradeep ji. Yes, जिसमें से yes. महाराष्ट्र में 5 फेज में. 5 phases in Maharashtra. Isn't that a bit much? That's kind of. And most of the opposition, including Chidambaram, has raised objections. He says, why such a इतना phases जरूरत क्या है? इतना phases का जरूरत क्या है? 7 phases are too much. In Maharashtra, you had Jayant Patil and Prakash Ambedkar objecting. He Yes. said, why 5 phases? Maximum Absolutely. 2 phases. In Maharashtra was okay. There was never any riots in Maharashtra where elections are concerned. जी. It has never happened. Poll Yeah. violence. इलेक्शन वायलेंस आज तक कभी नहीं हुई महाराष्ट्र में. Yes, yes. That's तो right. प्रकाश अंबेडकर says that 1985 से मैं चुनाव फील्ड में हूँ, इलेक्शन फील्ड में हूँ. मैं जी. कभी महाराष्ट्र में ऐसे वायलेंस कभी देखा मीन्स नेवर देखा where election period is concerned. So there was no need for 5 phases in Maharashtra. That's right, and there's no explanation per se, except for the fact that Mr. Rajiv Kumar, the Chief Election Commissioner, said that, you know, the movement of security forces has to be taken into account, and so on and so forth. But there was movement of security forces even in the earlier elections, and they didn't need so many phases. They have moved very, from Vidarbh one phase, Marathwada one phase, Paschim Maharashtra one phase, Konkan and North Maharashtra the other phase. So they have planned it in a very nice manner, but we don't know. Now I think what the happens- opposition has to have a reason. But I- anyway, I think last time Prime Minister Modi was sworn in in May itself. Yes, This time the results are going to be announced in June. 4th of June. Yes, sir. 4th of June, the results are going to be announced. Yes, It's yes. going to be a long wait, essentially. मतलब 19 अप्रैल से लेकर के प्रदीप जी Exactly. लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन ऑन द 1st of June 1st of June. और 4 जून, तो 19 अप्रैल से लेकर के 1.5 महीने के बाद आपको मालूम पड़ेगा. कैन यू इमेजिन what those candidates would be going through, whose fate has been sealed on the 19th of April. So that means 1.5 महीने तक they'll be on tender hooks कि यार क्या होने वाला है. That waiting period is going to be kind of terrible for all these people. मुझको ऐसा लग रहा है. That suspense is going to be killing. जी साहब, जो मतलब 26 मई जैसे मुंबई में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद एकदम 1st of June, उनको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फटाफट 4 जून को रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे. Exactly. लेकिन उनका सोचिए 19 अप्रैल, उसके बाद अप्रैल में जो बाकी 2 या 3 फेज जो हैं, वो मतलब उन बेचारे का क्या होगा. 1.5 महीना. गुड लॉर्ड. I hope they don't get cardiac problems, very frankly, because ब्लड प्रेशर सबका बहुत हाई होगा उस वक्त, या लो हो जाएगा, डिपेंड्स. But anyway, so 7 phases. Elections have been announced, and we have the we have the discussion on the electoral bonds, which personally I don't think is going to make too much of a difference to the outcome of the polls. मुझे नहीं लगता, very frankly. This is going to be like the Rafale case or any other case or anything else that the Congress has been able to come out with. यहाँ पर चलिए ठीक है. क्या होता है प्रदीप जी, मैंने देखा है 2014 से लेकर के आज तक कुछ ना कुछ ऑपोजिशन के हाथ लग जाता है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, मोदी जी की सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ लग जाता है हाथ. लेकिन विपक्ष जो है, विरोधी पार्टी जो है, उसको भुला नहीं पाते. दे हैव शोन अ मार्क्ड इनएबिलिटी
actually to be able to attack the government. I don't know Mobilize why. on these, exactly, mobilize on these issues. Yes. They've not been able to do it. What you're rightly saying, sir. I mean, Rafale was, I thought initially just thrust में गया था. I thought this is second Bofors. Bofors brought down Rajiv Gandhi. Yes. And there was every certainty that this थोड़ा ढंग से planning किया होता Rafale, because the point was not Rafale. Anil Ambani stuck to that. Anil Ambani today is bankrupt because in fact he's gone to the court saying to the Chinese bank he has mortgaged his wife's jewelry and he's come to that level. He says he doesn't have money He for doesn't have money. food. Yes, yes. That's what he has said in a London court. So he एक was- London he was- court में कहा है कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है साहब. Correct. जी. He was the weak link in the entire affair. Yes. And they could have easily achieved their target. Somehow they lost the way, and Prime Minister Modi and the BJP overturned the entire thing. Yes. मैं भी चौकीदार, सब लोग चौकीदार, and then the whole campaign went off. But they had a golden opportunity. Anyway, but I think No, they've had so many opportunities in the बिल्कुल. past. अभी GST को ले लीजिए, आप नोटबंदी को ले नोटबंदी लीजिए, को लीजिए। आप मतलब कितने अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास. आप जहाँ तक टेररिज्म का भी सवाल है, टेररिज्म में देखिए साहब प्रदीप जी, पठानकोट पे अटैक हुआ, नगरोटा में अटैक हुआ, उरी में अटैक हुआ, तीन अटैक हुए हमारे कंटोनमेंट्स पर अटैक हुए. पाकिस्तान की ISI को बुलाया गया यहाँ पे, आज तक कभी नहीं हुआ. उनको बुला लिया गया कि भैया आप देख लो आकर के, उसको भी नहीं भुना पाए. तो मतलब and Amit Shah says 10 साल not even one attack. एक भी अटैक नहीं 10 साल में. प्रदीप और जी- इनके 10 साल में गिन के कुछ 53 अटैक्स बोल रहे हैं. टेरर अटैक्स. मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पर अटैक हुआ है, Yes, yes, yes. मानते हैं. लेकिन a terror attack is a terror attack. लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमारा विपक्ष जो है वो इतना निर्बल है, मतलब इतना निकम्मा है, और कोई शब्द में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं कि अरे यार कुछ बोल ही नहीं सकते तुम. मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो ये पढ़ाई नहीं करते, पता नहीं आकर के क्या आवा दावा बोलते रहते हैं. मेरा कहना ये है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको डिबेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल वी कम टू दिस शो, वी स्टडी बिफोर दैट, रिसर्च करते हैं. Yes, yes. उसके बाद आते हैं यार कहीं कुछ मुंह से गलत ना निकल जाए. भले हमारा छोटा सा शो है, छोटा सा चैनल है, आप पता नहीं क्या आवा तवा बोल देते हैं, कोई विश्वास नहीं करता आप पे. आइदर इट इज दैट द ऑपोजिशन इज सो इनकॉम्पिटेंट प्रदीप जी, और मिस्टर मोदीज क्रेडिबिलिटी इज सो हाई that the people of India don't want to believe anything against Exactly. That's one particular thing, that the people don't want to hear anything against Prime Minister Modi. मोदी साहब के And- खिलाफ कोई कुछ सुनना नहीं चाहता था. And सीधी the बात. Prime Minister, जब भी attack होते हैं on the government, Prime Minister Modi comes and takes it on himself. Well, he answers the charges most of the time. And then जैसे मैं भी चौकीदार बना दिया, मैं भी चौकीदार हो गया तो मैटर थोड़ी खलास हो. Most of the matters it gets over one. चाय वाला, चाय पे वाला. चर्चा. Yes, yes. अब मोदी का परिवार, मोदी का परिवार. मामला हो गया खत्म. एकदम. मेरा यह कहना है कि इनको अभी तक अकल आ जानी चाहिए थी कि मोदी जी पर आप व्यक्तिगत आक्रमण जब करेंगे, मोदी जी पर आप व्यक्तिगत आरोप जब लगाएंगे, मोदी जी उससे और ताकतवर होंगे. क्योंकि ये विपक्ष को अभी तक समझ आ जाना चाहिए था कि हिंदुस्तान के लोग मोदी से प्यार करते हैं. भाई मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं. सीधी बात है. Right, at the moment with us from the BJP, I'm sure this gentleman will agree with me, Mr. Dharampal Meshram ji. Dharampal Meshram ji, namaskar. Namaskar. How are you, sir? नमस्कार. How are you, sir? How are you? How are you? Sir, I'm fine, very much fine, sir. क्या बात है सर. सर, so चुनाव तो अनाउंस हो गए. चुनाव 7 फेजेस में चुनाव है. जी. तो रिजल्ट क्या होने वाला सर, बता दीजिए, अभी बता दीजिए. कितनी आ रही है आपकी? 370, 380, 390 कितनी आ रही है, बता दीजिए. अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार. 400 बार तो वो तो एनडीए की है ना सर. आपकी कितनी है? अब 370 प्लस रहेंगे ना सर. 370 प्लस, वो तो फिर 430 चली जाएंगे. 370 प्लस रहेंगे. लेकिन अभी मैं फिलहाल एनडीए की ही बात करूंगा जी. क्योंकि चुनाव की आचार संहिता आज ही से लगी हुई है. तो तो मैं एज एन इंडिविजुअल बीजेपी की बात
से क्यों भाई? आगे जाकर सर, देयर इज नो एस्टॉपेल, नो करना सर। पसंद करूंगा। सर ऐसा नहीं है, आचार संहिता लगने के बाद ये नहीं है कि आप नहीं बोल सकते कि हमारी कितनी सीटें आएंगी, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कानूनन इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। वो आपकी चॉइस है, आप तय कर लें कि भाई हमारे बाकी जो घटक दल हैं वो उनको कोई मतलब चोट ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, इसलिए हम सिर्फ एनडीए की बात करेंगे, ठीक है। बट आई पर्सनली फील, प्रदीप जी, मुझको ऐसा लग रहा है कि इस बार 400 पार मतलब 430 आने वाली है एनडीए की। और ये मैं यहां पर बोल रहा हूं आज, मैं अभी तक ये बोल रहा था कि बीजेपी की 325 या 350 आएगी। और भाई द वे धर्मपाल मेश्राम जी, मैं आपको बता दूं, ये मैं पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूं, एक साल 8 महीने से, चेक कर सकते हैं आप। आई कैन सेंड यू all those shows that we have done over here of from 20 months ago. I have said the BJP is going to win anywhere between 325 and 350. Today I am saying BJP will actually cross 370 and the NDA might get 430. I am telling you this right now. आगे आप मुझे जो मर्जी बुला लीजिए, कुछ भी किसी को कुछ भी बुलाना हो शौक से बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज देखी गई है धर्मपाल मेश्राम जी, एक चीज देखी गई है, मोदी जी पे जब भी व्यक्तिगत अटैक होता है, मोदी जी और ताकतवर हो जाते हैं। मतलब 2014 से अभी तक हम लोगों ने देखा है, मोदी जी पे जो भी अटैक करता है, उसके बाद मोदी जी का एक तो हौसला और बढ़ जाता है और लोगों का प्यार मोदी जी के प्रति और बढ़ जाता है। ये क्या है, ये जरा बताएं। ये सच है सर। एक मागा स्वर्गीय कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला नेता, एक गरीब घर से जाकर चाय बेचने वाला नेता, इस प्रकार का नेता देश का प्रधानमंत्री हो सकता है और कांग्रेस को सिरे से खारिज कर उनके नेतृत्व को खुला आह्वान देने वाला नेता, यह हजम नहीं हो पा रहा है विपक्ष को, कांग्रेस जैसे पक्ष को और उनके घटक दलों को। और इसलिए आदरणीय नरेंद्र जी मोदी पर व्यक्तिगत हल्ला, ये उनके जो पेट में है वो ओठ में है, ऐसा बोला जाता है, वह निकल पड़ता है। और दुर्दैव से, उनके दुर्दैव से यही मोदी जी की ताकत बनकर मोदी जी उसको सिरे से उसका जो रास्ता है वो पलट देते हैं, वो अपनी दिशा में ओढ़ लेते हैं। और यही मोदी जी का पॉजिटिविटी है, यही मोदी जी का प्लस पॉइंट है, और यही इस देश को दुनिया के विस्तीर्ण प्रदेश में एक ताकत के साथ उभारने के लिए सक्षम है, काफी है, ऐसा मैं मानता हूं। धर्मपाल मेश्राम जी, इसमें सिर्फ यही बात नहीं है कि सिर्फ इसमें मोदी जी का ही मतलब एक भावनात्मक तरीके से लोग मोदी से जुड़ गए हैं। फैक्ट रिमेन्स वेदर वी लाइक इट और नॉट, आप मतलब जितने मर्जी जो मर्जी आप कर लीजिए, कैसे भी स्लाइसिंग कर लीजिए, कटिंग कर लीजिए, किस भी डायरेक्शन से देख लीजिए, भाई मोदी जी ने काम तो किया है ना, काम तो हुआ है ना। अब क्या कर लोगे आप? अब यूक्रेन में, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यूक्रेन में जब लड़ाई चल रही थी, हमारे स्टूडेंट्स को जब जाना था, अरे दोनों पक्षों ने लड़ाई रोक दी यार, 24 घंटे के लिए लड़ाई रोक दी। जब हमारे लोगों को हमें यमन से निकालना था तो सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट करके वहां से जो बम्बार्डमेंट हो रही थी, एरियल बम्बार्डमेंट, 4 घंटे के लिए रोक दी गई, ताकि हमारे जितने इंजीनियर, जितने वर्कर्स हमारे फंसे थे यमन में, वो सारे निकल जाएं, क्योंकि मोदी जी ने फोन कर दिया। मेरा ये कहना है कि सबको याद है वो, मतलब, और जब जिसको याद नहीं होता आप लोग याद दिला देते हैं, हम भी याद दिला देते हैं, ऐसी क्या बात है। तो काम तो हुआ है ना सर। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से इतने ज्यादा लोग जो हैं वो जुड़े हैं आपके साथ, वो जरा बताएं। मेश्राम जी, आई थिंक वी गॉट अ फ्रोजन फ्रेम ऑफ दैट। देखिए सर जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सरकार जी, मोदी जी के नेतृत्व में, जी बोलिए सर, बोलिए, प्लीज बोलिए। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है, अब आ रही है। साहब, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में देश के हर प्रकार के कम्युनिटी को, हर प्रकार के आदमी को, हर समाज को छूने का कोशिश और काम मोदी जी के सरकार ने किया है। आप समझिए, ग्रामीण विभाग से किसानों से कनेक्ट करने का काम रहे, महिलाओं को कनेक्ट करने का काम रहे, युवा उनसे कनेक्ट होने का काम हो, या गरीब से गरीब तबके के आदमी को कनेक्ट करने का काम रहे, मोदी जी के सरकार के नीति ने उस दिशा में पक्के तरीके से काम किया है। देश की अंतर्गत सुरक्षा रहे या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात रहे, आज
जिस प्रकार से भारत का वर्णन पूरे दुनिया के धरती में देशों में हो रहा है, जैसा कि आपने बात किया अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध, कुछ समय के लिए रोककर अगर देश के युवा इंजीनियर्स, वहां पर पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित तरीके से अगर अपने देश में आते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की रणनीति, उनका कर्तृत्व, उनकी काम करने का तरीका और अंतरराष्ट्रीय साख जो बढ़ी हुई है आज तारीख में, यही इसके वजह से ही ये सब साध्य हो पाया है। मैं समझता हूं कि कोरोना के काल से लेकर तो आज तक का काल रहे, या फिर वैज्ञानिक तरीके से आदित्य L1 चांद्रयान इधर भेजने का विषय रहे, या अपना जो सामरिक शक्ति है वो बढ़ाने का काम रहे, हर दृष्टि से हर क्षेत्र में भारत ने पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऊंचाई हासिल की है, इस वजह से भी इस देश के सारे तबके के लोग, सारे लोग जात धर्म पंथ भाषा वेशभूषा भोजन पद्धति को त्याग कर मोदी जी के प्यार में है और मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने दिल से स्वीकारा है। यही वजह है कि मोदी जी की गारंटी, अगर मोदी जी ने कहा है तो ये मोदी जी की गारंटी है और यह गारंटी हर हाल में पूरी होगी। ये विश्वास भारत देश की आबादी के मन में बैठा हुआ है। धर्मपाल जी, अमित शाह पॉलिटिक्स से भी हटकर अमित शाह जी ने आज एक बहुत अहम चीज कहा, बोले कि महाराष्ट्र में हमने कोई सरकार, कोई भी पार्टी को फोड़ा नहीं है, न तोड़ा है। अमित शाह जी का कहना, अमित शाह जी ने कहा कि इनके पुत्र मोह और पुत्री मोह ने इनके पार्टीज को डिवाइड करके बर्बाद कर दिया है। पुत्री मोह तो शायद शरद पवार जी के बारे में कह रहे थे और सुप्रिया थाई के बारे में कह रहे थे, और पुत्र मोह आगे जाके स्पष्ट रूप से अमित शाह जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी को, आदित्य ठाकरे जी को सीएम बनाना था, चीफ मिनिस्टर बनाना था, और बाकी के सीनियर नेता विरोध किए कि कल का बच्चा कैसे सीएम बनेगा। तो ये स्पष्ट रूप से अमित शाह जी ने क्लियर कट कर दिया कि पुत्र मोह और पुत्री मोह ने पार्टी को डिस्ट्रॉय किया। ये कितना आप पार्टी के अंदर इसको आप देखते हो? प्रदीप जी, यह बात तो सच है। अमित भाई शाह साहब ने जो कहा है महाराष्ट्र की धरती से, महाराष्ट्र के संदर्भ में, यह सच है। अगर शिवसेना हिस्सों में बटी हुई है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है जो उद्धव ठाकरे जी कहते थे कि कोई भी शिव सैनिक भाजपा की या दूसरों की पालकी नहीं वहन करेगा। लेकिन क्या हुआ, जब मंत्री परिषद के गठन करने का समय आया तो सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र को, नौखे पुत्र को, जिसको राजनीति का कोई भी अनुभव नहीं, महाराष्ट्र के समाज जीवन का कोई अनुभव नहीं, ऐसे पुत्र को पुत्र मोह में अंधा होकर उसको डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। शरद पवार साहब ने अभी सुप्रिया सुले जी को लॉन्च करने के चक्कर में या उनके कंधों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने के चक्कर में घर के परिवार को और इतने सारे सदस्यों को नाराज कर दिया। आज अजित पवार जी के नेतृत्व में 40 से ज्यादा विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस से निकलना यह कोई साधारण सी बात नहीं है। या फिर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना से अगर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 45 तकरीबन विधायक और 11 सांसद अगर निकलते हैं तो यह साधारण सी घटना हम लोग इस तरीके से नहीं सोच सकते। और इसलिए अमित शाह साहब ने जो कहा है कि पुत्र मोह में और पुत्री मोह में महाराष्ट्र के राजनीतिक पार्टियों ने अपने खुद के ऊपर यह सारा ब्लेम लिया है और इसी के वजह से भी उन्होंने नैसर्गिक युति को ठोकर मारकर अपने खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए यह सब इस प्रकार का राजकारण किया है। यह राजनीति जो मोदी जी भी कहते हैं कि परिवारवाद, यानी उन्होंने जो 3 चीजें कही, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, तो यह परिवारवाद सबसे पहला मसला है जो हमें दिल्ली से लेकर, कांग्रेस से लेकर तो कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर तो महाराष्ट्र तक यह सारी जगह देखने को मिल रहा है। और इसीलिए भी विरोधी पक्ष कमजोर होने के पीछे यह एक अहम मुद्दा है, ऐसा मैं भी मानता हूं। और इसलिए अमित शाह साहब ने जो कहा है वो 100% महाराष्ट्र के राजनीति के लिए फिट बैठता है और सच कहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जब चर्चा हो रहा था तो अमित शाह जी ने एक नया स्पिन दे दिया।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने क्विड प्रो क्यो और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के तहत पूरे बॉन्ड्स को अपने तरफ घुमा लिया, करीबन 6,000 करोड़। आज अमित शाह जी ने कहा कि टोटल 20,000 करोड़ बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स यूटिलाइज हो चुका है। 20,000 करोड़ में सिर्फ 6,000 करोड़ बीजेपी का है। 14,000 करोड़ उन्होंने कहा कि नॉन बीजेपी लो पार्टीज ने लिया है। तो ये क्या नया स्पिन है? बोले कि हमारा 303 है और हमको सिर्फ 6,000 करोड़, और बाकी का कुछ गिन गिन के मेजोरिटी में नहीं है, अलग 53 है, किसी के 10 है, किसी के 20 है, सब मिला के 14,000 करोड़ उन लोग ने जमा कर लिया। ये क्या नया स्पिन दे दिया अमित शाह जी ने? पूरा गणित उल्टा हो गया अभी। ये क्या चक्कर है? देखिए नाम्बियार साहब, अमित शाह साहब ने कोई स्पिन नहीं दिया है, सच्चाई पटल पर रखी है। और सच्चाई इलेक्टोरल बॉन्ड होने के वजह से ही, यह समझ लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड होने के वजह से ही सच्चाई कोई भी माध्यम से क्यों ना हो सामने आई है, पटल पर आई है। यह 20,000 करोड़ से भी ज्यादा 1-1 करोड़ के फॉर्मेट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड देश ने 2017 से शुरू किए थे, विशेष रूप से अरुण जेटली जी ने जो चीज कही थी कि अगर हमें काला धन यह पॉलिटिकल पार्टी से निकालना है और सच्चाई सामने लानी है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाने चाहिए या ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। तो यह तो आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रहे या सच के माध्यम से रहे, सच पटल पर आया है और यह सबने स्वीकारना चाहिए कि 20,000 करोड़ से भी ज्यादा जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को खताया गया, जो कैश किया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 6,000 करोड़ रुपयों का है। आप देखिए भारतीय राजनीति में और सरकार में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत कितना है। हम 303 खासदारों के साथ में है, 14 से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और अलाइड पार्टीज की सरकारें हैं, और ऐसा होने के बाद अगर हमें 6,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं तो यह अचरज वाली बात कहीं से भी नहीं है। लेकिन अगर एक राज्य में सत्ता होने वाले पार्टी को अगर 2,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं तो इसके पीछे का भी गणित हमने समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इन चीजों को विरोधी पक्ष ने सामने लाने का प्रयास किया, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आरोपी के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, आज यह सारी विरोधी पक्षियां मुंह पर गिरी हुई है। और आप देखिए कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड में सिर्फ 30% हिस्सा, जो भारतीय राजनीति में 80 तकरीबन 70% हिस्सा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड में सिर्फ 30% हिस्सा है, जबकि विरोधी पार्टी और अन्य पार्टी और जो भी स्टेट वाइड पार्टी जो है उनका हिस्सा अभी तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। तो यह मैं समझता हूं कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्याय प्रणाली में विश्वास रखता है, संवैधानिक पद्धति में विश्वास रखता है, यह बात आज ठीक तरीके से समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सही दिशा में काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जिन प्रकार से आरोपी के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, यह विपक्ष ही कमजोर नहीं सिर्फ बाकी झूठा भी है, यह आज के इससे साबित होता है। यही बात माननीय अमित भाई शाह साहब ने आपके और हमारे सबके समक्ष रखी है। लेकिन यहाँ पे it's an ongoing subject. I really wouldn't like to talk about it very much as far as the electoral bonds are concerned. Very frankly, because let's see how it goes. आगे केस कहाँ चलता है, किधर जाता है, क्या जाता है। बाकी जो 2017 के बाद की जो लिस्ट है अभी तक आई नहीं है, 2019 के बाद की लिस्ट उन्होंने पब्लिश करी है। 2017 के बाद की जो लिस्ट है, 2 साल की जो लिस्ट अभी तक, आई थिंक इट विल प्रॉब्ली कम ऑन मंडे, सो वील सी हाउ इट गोस। मतलब वो तो अलग बात है। मैनेज टू गिव इट अ स्पिन व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज एब्सोल्युटली 303 सीट्स और हमारा सबसे ज्यादा 6,000। लेकिन प्रदीप जी उसमें दूसरी बात भी ये आती है कि बाकी जो पार्टीज हैं वो अपने एमएलएस गिनाती हैं, हमारे एमएलएस इतने हैं, आपके एमएलएस इतने हैं, सीधी बात है। मतलब 4,036 एमएलए हैं पूरे के पूरे देश में, जिसमें से तकरीबन 1,020 या 1,090 के करीब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाकी जो हैं बाकी पार्टीज के हैं। सो दैट आर्ग्यूमेंट कैन वर्क बोथ वेज because all the other parties are in power in the states. The BJP is in complete power in the center, and it has governments all over as far as the other states are concerned. But all I'm saying is there should be transparency, there should be
नो नीड, देयर वाज नो नीड एक्चुअली टू हाइड दिस। सीधी बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं थी। जो अभी अभी जैसे अमित शाह जी ने बोला है कि भाई हमारे 303 MP हैं, 1000 से ज्यादा आपके MLA हैं, लिहाजा और हमको आपसे कम पैसा मिल रहा है, सीधी बात है। तो ये तो मतलब इसमें छिपाने वाली कोई बात ही नहीं थी, सीधी सादी बात है। और लेकिन बात सामने जो आती है दूसरी, क्योंकि बात चली है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, कांग्रेस का ये कहना है साहब कि 7 साल पुराना केस, कुछ 14 लाख रुपए उन्होंने कोई क्या बोलते हैं उसको, कैश में जमा कराए 7 साल पहले, जिसकी वजह से 7 साल के बाद इनकम टैक्स ने 300 करोड़ के उनके मतलब अकाउंट फ्रीज कर दिए, अकाउंट बंद कर दिए कांग्रेस के। उनका यह कहना है, ये तो बीजेपी के इशारे पे हुआ है कि हमारे पास चुनाव के पहले पैसा ना रहे। मेश्राम जी। बजाज साहब, यह बात सिर्फ 14 लाख रुपए की नहीं है जी। आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि 2014 से पहले 2004 से लेकर 2014 तक जिस प्रकार का पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है वह अज्ञात स्रोतों से मिला हुआ था, जिसका हिस्सा था कांग्रेस में 83% तकरीबन। अगर 10,000 करोड़ रुपया अज्ञात स्रोतों से वो भी 2004 से 2014 तक सरकारी सत्ताधारी पार्टी को मिलता है तो वो होता है तकरीबन 8,300 करोड़ रुपए। यह 14 लाख रुपए की एक एंट्री हुई, और यह जो कहना है यह कांग्रेस पार्टी का कहना है। अब उसमें सच क्या है, जब तक के यहां की संवैधानिक संस्थाएं जो भी होगी वो जांच पड़ताल नहीं करेगी, और वो जांच पड़ताल एजेंसी की जो सेकंड साइड है वह जब तक हमारे सामने नहीं आएगी, इस विषय में खूब बोलना उचित होगा, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। और इसलिए जब तक के यह सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी, तब तक के जांच चलेगी, और यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता उन एजेंसी की है। यहां पर एक और बात भी सामने आई है सर, एक और बात भी सामने आई है, कुछ नहीं कर सकता। एक और बात भी सामने आई है धर्मपाल मेश्राम जी, प्रदीप जी, सुनने वाली बात है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यह भी कहा गया है कि पहले ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के पहले जब कांग्रेस को 1100 रुपए आते थे तो कांग्रेस के खाते में 100 रुपए जाते थे, और 1000 रुपए जो थे जो भी लेके आता था वो अपनी जेब में रखता था। ऐसा ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का हाल था। इसलिए आज की तारीख में आप देखें, जो शख्स जो है कॉर्पोरेटर बनने के पहले जिसके पास बेचारे के पास एक स्कूटर नहीं होता था, आज की तारीख में वो SUV में ट्रैवल कर रहा है। अरे बड़े बड़े उसके पास मकान हैं, 20-20 50-50 घर हैं, 200 फ्लैट है। तो मतलब मेरा ये कहना है, ठीक है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, सुप्रीम कोर्ट को का पूरा आदर रखते हुए कि कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए हिंदुस्तान में कि यार जो फंडिंग है इलेक्शंस की, इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, जो फंडिंग है इलेक्शंस की वो व्हाइट मनी में होनी चाहिए, ओवर द टेबल होनी चाहिए, और सबको मालूम होना चाहिए पैसे कहां से आ रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है। मेश्राम जी, आप बताएं इसके बारे में। सही बात है बजाज साहब, खूब ज्यादा इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सर्वविदित बातें हैं, जो उदाहरण है कि कांग्रेस के नेता मजबूत हुए हैं जी, उनकी वैयक्तिक संपत्ति बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस स्वयं कमकुवत हुई है, कांग्रेस के पास में फंडिंग नहीं है, ऐसा हमने सुना है, मुझे जानकारी नहीं है जी। पर जिस प्रकार से हम लोग देखते आए कि कांग्रेस के सत्ता काल में कांग्रेस के नेता वैयक्तिक रूप में बढ़े हुए हैं, उनकी संपत्तियां बनी है, लेकिन कांग्रेस कमकुवत हुई है। अगर यह सच है और इसी प्रकार से अगर चलता रहेगा तो मैं समझता हूं कि राजनीति में भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं पाएंगे। अगर हमने सुधारणावादी होना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, सारे चीजों को क्रिस्टल क्लियर करना है, पारदर्शिता लानी है, तो उसमें उपाय योजना होनी चाहिए। अगर आज इलेक्टोरल बॉन्ड को नकारा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने सुधारणावादी होकर कुछ नया और भी क्या हो सकता है। नहीं, इसी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में अमेंडमेंट ला सकते हैं सर, उसमें क्या है? It's a very good scheme. मैं वही बोल रहा हूँ बजाज साहब कि अगर कुछ खामियां रह गई है तो उसमें सुधारना लाकर हमने फिर से ये चीज फ्लोट करनी चाहिए, फिर से ये चीज पटल पर लानी चाहिए,
लेकिन सुधारनावादी जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमने कसम खाई है, मोदी जी ने कहा है, हर बार कहा है, 1000 बार कहा है कि राजनीति से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होना चाहिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है उस प्रकार की सुधारणा लाने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी स्वयं है, मोदी जी स्वयं है, अमित भाई शाह स्वयं है, नड्डा साहब है, देवेंद्र जी फडणवीस साहब है, बावनकुळे साहब है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता भी इसका पक्षधर है। मैशराम जी, एक वक्त था जब विदर्भ कांग्रेस का बैस्टन था, जहां से आप आते हो, गडकरी साहब को वापस टिकट मिला है, बहुत खुशी की बात है, आप लोग तो एकदम जबरदस्त तरीके से। मगर एक वक्त था कि ये पूरे विदर्भ कांग्रेस का बैस्टन था, कांग्रेस कोई भी खड़ा करता वो जीतता था। एक टोटल वातावरण में चेंज अब आ गया और आप जैसे एकदम कर्मठ लोग वहां से निकले हैं और बीजेपी एक यूनाइटेड फ्रंट होकर निकले हैं। मुझे याद है पहले गडकरी साहब आते थे, बजाज साहब के कार्यक्रम में बोलते थे कि वो कभी कभी एमएलए, कभी सपना में सोचता इलेक्टेड, यानी ऐसे तो आ जाते थे एमएलसी बनकर, बट चुन के आना बहुत मुश्किल बात थी वहां से गडकरी जी को। अभी तो आसान से, अभी वो वातावरण कैसे हो गया और विदर्भ आज कैसे देखते हो आप नागपुर सहित? मेशराम जी। प्रदीप जी, कांग्रेस ने विदर्भ को दुखती गाय करके समझा था। यहां गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीरी होने के बावजूद महाराष्ट्र अपना विदर्भ की सीटों से चुनकर आते थे जी। पीवी नरसिंह राव साहब यह रामटेक से चुनकर आते थे जी। मुकुल वासनिक जी कभी नागपुर में आए नहीं, वो रामटेक से चुनकर आते थे। वसंतराव साठे कभी रहे नहीं, वो वर्धा से चुनकर आते थे। तो यहां पर विदर्भ को जिस प्रकार से विदर्भ का दोहन हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर में जिस प्रकार का बैकलॉग विदर्भ में भी उभ रहा है, विदर्भ में ना कोई भी प्रकार की इंडस्ट्री लाई गई, विदर्भ में ना कोई भी प्रकार की कांग्रेस वालों ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए, कोई इंस्टीट्यूशन लाने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी। जिस प्रकार से गडकरी साहब ने यहां पर मेट्रो सिटी बनाकर दुनिया के नक्शे में भी नागपुर का नाम लेकर गए हैं, उन्होंने यहां पर ड्राईपोर्ट लाया है, यहां पर उन्होंने आईआईएम रहे, ट्रिपल आईटी रहे, या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रहे, या सिम्बोसिस रहे, या नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी का सेंटर रहे, यह सब लाकर नागपुर में भी विदर्भ का केंद्र करके विकसित करने का काम नितिन गडकरी साहब ने निश्चित रूप से अपने 10 सालों के कार्यकाल में किया है। और नागपुर में रिंग रोड रहे, नागपुर में रिंग रेलवे रहे, नागपुर का मिहान आज जिस गति से और जिस दिशा से बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में नागपुर एक इंस्टीट्यूशनल हब तो बना ही है, लेकिन इसके बावजूद रोजगार केंद्रित भी हब ये निश्चित रूप से बनेगा। जिस प्रकार का काम पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में नितिन जी गडकरी साहब ने नागपुर को केंद्र में रखकर विदर्भ का जिस तरीके से विकास किया है, मैं समझता हूं कि विदर्भ की जनता यह पूरी तरीके से समझ गई है। और जो पिछले समय विदर्भ में 11 में से 11 सीटें चुनकर लाने वाली कांग्रेस आज विदर्भ में 10 सीटों में से 1 सीट पर आकर सिकुड़ी है। और मेरा विश्वास है कि अभी इसके बाद में ये 10 की 10 सीटें कांग्रेस के हाथ में, उसमें से एक भी सीट नहीं आएगी और 10 की 10 सीटें यहां बीजेपी के पाले में निश्चित रूप से आएगी। ऐसा विश्वास भी मुझे लगता है, विदर्भ की जनता पर इतना हमारा विश्वास है, इतना हक भी है, ऐसा भी मैं मानता हूं। धर्मपाल मेश्राम जी, नागपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। लुक एट द आर्किटेक्चर ऑफ नागपुर। जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है नागपुर का पुराना, जो अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग्स है वहाँ पे, जिस तरीके से आप लोगों ने उनको प्रिजर्व करके रखा है, मतलब इट इज सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद उसी लहजे में जो नया आर्किटेक्चर भी जो बनाया गया है, आई मीन इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द होल ऑफ महाराष्ट्र। Whenever I go to Nagpur, I feel as if I have come home. There are so many of our friends who live there. Our Nitin Gadkari ji lives there. हमारे दूसरे मित्र हैं, आपकी पार्टी से नहीं है लेकिन मित्र तो हैं, अनिल देशमुख जी, वो भी वहीं के हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल द एंटायर सिटी। मतलब कॉरपोरेशन में मुझे अभी तक याद है, देवेंद्र फडणवीस जी जब मेयर हुआ करते थे अपने नागपुर के, तब से आज तक नागपुर में सिर्फ इम्प्रूवमेंट हुई है। नागपुर में मतलब डिटीरियोरेशन नहीं हुआ है। जैसे बाकी सब शहर में आप कह सकते हैं ना कि यार गार्बेज की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, तो ये कैसे हुआ? आई एम सॉरी, आई एम डिविएटिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट वेरी फ्रैंकली। द एग्जांपल ऑफ नागपुर, ऑफ इंदौर, यू नो, दीज आर सिटीज दैट वी मस्ट लर्न फ्रॉम। तो नागपुर में एक तो नागपुर के जो रेजिडेंट्स हैं, नागरिक जो हैं, मुझे लगता है वो बड़े गर्वान्वित हैं अपने शहर को लेकर के, मुझको ऐसा लगता है। मेश्राम जी बताएं।
बजाज साहब, ये बात तो सही है कि पिछले तकरीबन 15 साल से ऊपर जी नागपुर शहर में लोकल बॉडीज में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है जी और स्वयं देवेंद्र जी फडणवीस साहब, मैं समझता हूं कि तकरीबन 2 बार नागपुर शहर के महापौर भी रहे। जी सबसे कम उम्र के नगर सेवक और सबसे कम उम्र वाले महापौर, जिस प्रकार से उन्होंने नागपुर शहर के विकास के लिए काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां से नागपुर ट्रांसफॉर्म होने की शुरुआत हुई। और उसके बाद नितिन जी गडकरी साहब जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर स्टेट में बने 1995 में, नारायण राणे जी और मनोहर जोशी जी के नेतृत्व वाली सरकार में जी उसके बाद में नागपुर जिस प्रकार से विकसित स्वरूप में सामने आया, जो नागपुर शहर न होकर पहले एक विलेज के रूप में ही था, एक खेड़ा था, एक बड़ा खेड़ा था, वह आज शहर बना है, तो इन दो नेताओं के विजन के वजह से बना है। और फिर सत्ता में आने के बाद 2014 से लेकर 2019 में जब देवेंद्र जी फडणवीस साहब इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, सबसे कम उम्र वाले और पूरा समय तक के रहने वाले रिकॉर्ड ब्रेक मुख्यमंत्री जो बने, उन्होंने नागपुर को, और नितिन जी गडकरी साहब केंद्र में मंत्री होने की वजह से जिस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस, जिस प्रकार का विकास इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में हुआ है, वह एकदम ही अल्टीमेट था। Fantastic. एक विकास को अलग दिशा में लेकर जाकर वो एक नया नए उदाहरण सेटल करने वाला नागपुर का विकास हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ इन दो विजनरी नेताओं के बल पर हुआ है। इन्होंने पूरे मेशम जी दूसरी चीज एफर्ट्स डालकर जी नागपुर को एक नए ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि नागपुर आज देश में और दुनिया में भी एक नक्शे पर नागपुर को लाने का काम इन नेताओं ने किया है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मेशम जी ये बताइए कि पहले क्या होता था, बिकॉज वी बीन जर्नलिस्ट नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी रिपोर्टर को अगर चंद्रपुर भेजा करते थे, यवतमाल भेजा करते थे, गढ़चिरौली भेजा करते, गढ़चिरौली में अभी भी प्रॉब्लम है, चंद्रपुर में, यवतमाल में कोई जाने को तैयार नहीं होता था। आज की तारीख में स्थिति बिल्कुल बदल गई है। मतलब आई गेट वेरी गुड रिपोर्ट्स इवन अबाउट चंद्रपुर। इज दैट ट्रू? क्या मैं चंद्रपुर गया नहीं, बहुत बड़े साल हो गए मैं गया नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये बात ठीक है? ये सच बात है बजाज साहब, इतनी सच बात है कि आज आप नागपुर से चंद्रपुर सिर्फ 2 घंटे में जा सकते हैं जी। आज आप नागपुर से यवतमाल 2 घंटे में जा सकते हैं। आज आप नागपुर से अमरावती और अकोला 2.5 घंटे में जा सकते हैं। और आज नागपुर में आप नागपुर से बंबई तो 8 घंटे में जा सकते हैं। अभी गडकरी साहब ने जो नगर से लेकर पूना तक के रोड बनाने की 230 किलोमीटर की घोषणा की और जहां पर काम शुरू किया है, आप नागपुर से पूना 6 घंटे में पहुंचेंगे। जो देवेंद्र जी ने नागपुर से गोवा जो अभी ये निकाला है समृद्धि के बाद में, तो यह आपको तकरीबन 12 घंटे में, 12 से भी कम समय में गोवा पहुंचाएगा। नितिन जी गडकरी साहब ने सिंधी रेलवे में वर्धा रोड पर एक ड्राईपोर्ट बनाया है, जहां से एग्रीकल्चरल क्रॉप रहे या कोई भी एक्सपोर्ट करने वाली जो चीजें हैं, यह समुद्र के मार्ग से तो जाएगी, लेकिन जहां समुद्र नहीं है वहां से भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगी। तो यह जो प्रकार का काम है, इसके बाद में चंद्रपुर के विकास की अगर हम बात करेंगे तो सुधीर भाऊ मुनगुंटीवार जी काफी समय तक मंत्री रहे, हंसराज अहीर साहब भी मंत्री रहे केंद्र में, सुधीर भाऊ मुनगुंटीवार भी राज्य में मंत्री रहे। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में चंद्रपुर को भी एक नए ऊंचाई पर, विकास के संदर्भ से एक नए ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है। मैं स्वयं चंद्रपुर लोकसभा का प्रभारी और समन्वयक भी राज्य भाजपा की तरफ से हूं। तो चंद्रपुर ने भी जिस प्रकार से, देखिए आप इस साल पहली बार देखेंगे आप कि MIDC के धरती पर FIDC यानी जंगलों से जो भी उत्पन्न आता है उसके आधारित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाना, इस प्रकार का विजन रखने वाले नेता और इस प्रकार की रखने वाले सुधीर मुनगुंटीवार जी आज चंद्रपुर के पालक मंत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है और सरकार में मंत्री भी है और कैंडिडेट भी है। कैंडिडेट मैंने बोला है, कैंडिडेट भी है निश्चित रूप से। तो यह सब जो उन्होंने काम किया, इसलिए ही उनका कैंडिडेचर आज सामने है। वो कैंडिडेट करके चुनाव में खड़े हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं आज इस माध्यम से और विश्वास भी व्यक्त करता हूं
कि वह भी चंद्रपुर के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से लोकसभा में चुनकर आएंगे। क्या बात तो है। जिस प्रकार के विकास की जबरदस्त। बात हम लोग करते हैं, चंद्रपुर सिर्फ नहीं, अमरावती से लेकर अकोला रहे जी, या गढ़चिरौली भी रहे, गढ़चिरौली, तो जिस प्रकार गढ़चिरौली में भी देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो अभी 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाया है, अभी ऑलरेडी 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ला करके इंडस्ट्री खड़ी की है, काम शुरू है। उसके बाद में भी 10,000 करोड़ रुपए की फिर से लोहगढ़ का जो एक नया इंडस्ट्रियल यूनिट उन्होंने लाया है, तो यह बहुत सारी काबिले तारीफ अरे काम बहुत लंबी बात हो जाएगी भारतीय सर। जनता पार्टी के सर सरकार दिस ने इज माय विदर्भ फेवरेट में किया है। सब्जेक्ट। अब ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, स्पेशली गढ़चिरौली, यवतमाल, चंद्रपुर, नागपुर। ये बहुत मतलब मैं इसके ऊपर तो दो 10 घंटे बात कर सकते हैं, जहाँ पर उसका सवाल है। छोटी सी एक चलते चलते एक सवाल सर आपसे। आदरणीय सामान्य राहुल गांधी जी अभी मुंबई आ गए हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में भी अपनी न्याय यात्रा लेकर के आए। वो साहब भीड़ तो बहुत है, ये मानना पड़ेगा, भीड़ तो उनके साथ बहुत है, बहुत लोग हैं। अब ये भीड़ क्या असल में उनको वोट देगी या ये सिर्फ देखने के लिए आए हैं? बताएं सर, मेरे सामने। देखिए बजाज साहब, राहुल गांधी जी के तरफ आने से पहले हम इंदिरा गांधी जी की बात कर लेंगे, उसके बाद में हम राजीव गांधी जी की बात कर लेंगे, उसके बाद में सोनिया गांधी जी की बात कर लेंगे, और अब हम राहुल गांधी जी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वडेरा जी की भी बात कर लेते हैं। जी तो लोगों में एक प्रकार का सर नाम उन्होंने चेंज कर लिया, वडेरा फैमिली ने अपना नाम वाड्रा कर लिया सर। वडेरा वाड्रा जो भी समझ सर लीजिए, वडेरा इंगित तो हो सर जाएगा। वडेरा जो होते हैं वो ज्यादातर बलूचिस्तान से होते हैं। वो वडेरा का मतलब होता है लैंड ओनर, जमींदार। अब उन्होंने वाड्रा कर दिया नाम अपना। जी बोलिए सर। तो प्रियंका जी के जो पति है रॉबर्ट जी, उनके ऊपर भी लैंड स्कैम के आरोप लगे हैं। खैर हम इस विषय पर फिलहाल चर्चा नहीं करना चाहेंगे। यह बात है कि राहुल गांधी जी ने कभी भी देश के आम आदमी से जुड़ने का काम नहीं किया। ना उनको देश के हर हिस्से का ज्ञान है, ना यहाँ के कल्चर का ज्ञान है, न यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनके काम के बारे में वो जानते हैं। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी अभी चुनाव के बहाने कम से कम देश के हिस्सों में वो घूम रहे हैं। चाहे वो कश्मीर के 370 के कलम के इंसर्शन के बाद कश्मीर को तोड़ने का जो काम हुआ है पंडित नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर आज तक, उसके बावजूद राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला। यहां इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देकर कुछ समाज और रिलीजियस एक्टिविटीज को बढ़ावा देकर उन्होंने देश में अशांतता का निर्माण कर भारत को तोड़ने का काम किया है। आज वो भारत जोड़ो और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो यह हमारे लिए अचरज की बात है। जिस प्रकार से मेरे लिए अचरज की बात है, उसी प्रकार के देश के अन्य हिस्सों में जहां जहां राहुल गांधी जी जा रहे हैं, या अभी महाराष्ट्र में बंबई रहे या फिर धुले या पालघर ऐसे हिस्सों में भी रहे, तो ये जो लोगों के मन में उनके प्रति एक जो नयापना देखने की बात आती है कि आजकल कोई भी हम जो देखते हैं कि हमारे भारत की कोई भी हीरोइन अगर देश के हिस्सों में घूमती है, जितनी भीड़ उसके लिए नहीं होती, तो एक आम महिला जो विदेशों से आती है उसको देखने के लिए भीड़ होती है। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि राहुल गांधी जी को भगवान समझ दे, उनको राजनीति का ज्ञान दे, यहाँ के लोगों को समझने की वो कोशिश करे, और यहाँ के लोगों को न्याय देने के लिए वो सबसे पहले जब तक कि अपना जीवन अर्पित करने के बारे में सोचेंगे नहीं, यहाँ के लोग उनको स्वीकारेंगे नहीं। आज जो भीड़ दिख रही है वो इकट्ठा करी हुई भीड़ है, वह कहीं स्वयं से आई हुई भीड़ नहीं है, और यह निश्चित रूप से वोटों में तब्दील नहीं होगी। आज मोदी जी का नेतृत्व कंपैरेटिवली जिस प्रकार से दुनिया और देश के हर हिस्से में पहुंचा है, और राउंड द क्लॉक काम करने वाले जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वह उनका प्रतिनिधित्व, उनका नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ मोदी जी करते हैं। और ये उन्होंने दिखाया है अपने ये 10 सालों के कार्यकाल में कि मैं परिवार को भी अपने वैयक्तिक रूप से परिवार को जो तवज्जो देनी है, जितनी देनी है, जितनी मर्यादा तक है, उतना मैं करूंगा। लेकिन यह देश 140 करोड़ आबादी वाला देश मेरा परिवार है, या मैं छुट्टियां नहीं लूंगा। अगर मैं छुट्टियां लूंगा तो मेरे देश का काम रुक जाएगा। जो सपना, जो मिशन में मोदी जी निकले हैं, वो मिशन खंड पड़ेगा।
और जी। इसलिए मोदी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के कार्यकाल में कम से कम इन 10 सालों में, जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। दुरुस्त बात। और इसीलिए मैं समझता हूं कि देश की 140 आबादी वाला यह देश मोदी जी को निश्चित रूप से स्वीकारेगा और मोदी जी के जिसमें 96 करोड़ 96 करोड़ वोटर है। और अब की बार 96 400 करोड़। पार। हाँ 98 96 करोड़ करोड़। वोटर्स है और जी 98 करोड़ वोटर्स है और तकरीबन 98 के 1.82 करोड़ नव मतदाता है। सर 96.8 98 98 करोड़। ओके, I'll just check. मैंने अभी ECI की जो प्रेस पढ़ रहा था, ठीक है, 98 फिगर में नहीं रहेंगे सर, 98 करोड़ तो तकरीबन कोई बात नहीं। 95 प्लस करोड़ That's a lot. That's huge. 95 प्लस करोड़ वोटर्स है और 1.82 करोड़ नव मतदाता है। जी मैं समझता हूं कि सिर्फ यही नहीं तो पूरे दुनिया का ध्यान अभी भारत की, ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही और लोकशाही के उत्सव के मेले की तरफ लगा है। मैं समझता हूं कि मोदी जी को जिस प्रकार के रिफॉर्म्स उन्होंने लगता है, जिस प्रकार की सुधारना, राजनीतिक सुधारना करने का काम करने के साथ इस देश को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है, मैं समझता हूं कि सिर्फ मतदाता ही नहीं अपितु जो नॉन वोटर्स भी है, इस देश का पॉपुलेशन है, वह भी मोदी जी उनके दिलों में बसे हुए हैं। निश्चित Wonderful. रूप से आप जून महीने में जब भी निकाल आएगा, 430 पार। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, ये मेरा विश्वास है। कम से कम 430 प्लस। 400 पार पर अटके हुए हैं। आपकी शुभकामनाएं के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच सर। फैंटास्टिक। आपको डबल जवाबदारी है गडकरी जी और सुधीर मुंगेटीवार जी के। जय सिया राम सर, जय सिया राम। जी जी, जय श्री राम। मेरे पास बीजेपी की जिम्मेदारी है, जी। मोदी जी की जिम्मेदारी है और भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से मैं काम करूंगा। जय धन्यवाद। सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर, सो मच सर, थैंक यू। जय श्री राम, नमस्कार, हर हर महादेव। थैंक यू सो very मच। Wonderful. So the BJP is out to break Rajiv Gandhi's record. That's what they say. Do you remember Rajiv Gandhi had come back with 419 seats in 1984, and then a couple of by-elections were held, and they were able to cross 420. I think they went up to 423. Third if, term, if I'm not if he mistaken. breaks it, he's going to create a record in That itself. will be huge. That will be huge. Yes, sir. He'll be the first prime minister actually to be elected 3 times in a row after Pandit Jawaharlal Nehru. पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि तीसरी बार चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बनेंगे अगर मोदी जी जीत के आते हैं तो। एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी